Good evening, everyone. I welcome all of you to today's session. Friends, we have started one new series. This is regarding UPSC CSAT. In the last lecture, which is our first lecture, I told you that we are going to solve previous year questions, and we have begun with solving arithmetics. Every day we'll be solving five question every day. And by solving these five questions, our aim will be to understand the underlying concepts, how to apply common sense, and to get familiarity with what is UPSC is asking. So without wasting any time, let's begin. These are the questions yesterday we have done in the first class. तो आज से हम नया कुछ करेंगे. As I have told you, I am just going backward. I have taken from 2022 onwards because that was readily available with me. Soon I will be starting from 2024 itself. So don't worry about that. Okay. So today's first question. What is the remainder when 51 into 27 into 35 into 62 into 75 is divided by 100? समझ में आ रहा है? मतलब here it is given 5 numbers. You have to multiply them and you have to divide by 100, and it is asking what is the remainder. For example, suppose I'll ask you, if I am dividing 5 into 5 by 2, what is the remainder? तो आपको क्या करना होता है? You will multiply 5 into 5 is equal to 25 by 2. You will divide by 2 means कैसे करते हो आप? 12 into 2, 24. So 1 is the remainder. So similar way this question is asked. So either you have to multiply this all this number, but soon you multiply, you will find this a very big number. Okay, and you have to divide by 100. So this is not the ideal method to do it. And one more thing, you see, the divider is 100. Now when you divide any number with 100, have you ever observed what is the remainder? For example, I will divide 350 by 100. What will be the remainder? You know, 100 into 3, it will be 300. 100 into 4, it will be 400. So maximum I can go 300. So remainder will be 50, right? Similarly, suppose I will tell you 475. What is the remainder when you divide by 100? 100 into 4 will be 400. So 75 will be the remainder. I will tell you 2025 by 100. What is the remainder? When you divide, you will see, you will multiply with 20. It will become 2000 and you will get a remainder of 25. So what you are observing? Any number, let us say it is n. Okay, this number is n. You are dividing it by 100. The remainder will be always the last 2 digit. Whatever random number you say, let us say I will write a number 75643 by 100. If you divide it by 100, you will see 32 will be the remainder. You just check. I have given you 3 example. You check it. So that means what you have to see. This is one of the way to understand. Okay, the question. First, you have to understand the question, right? So always it will be the last 2 digit. Now you need to know what is the multiplication. If I multiply these 5 numbers, what should be the number after that? Then only you can find. So this method will not hold good. But for your sake of understanding, I told you. Suppose there is small number, you can do it. Now I will give you a very general method. You have to apply it to any question. Whenever this kind of question comes, how to do it? What you have to do? Look very carefully. You have to write the number 51 into 27. आपको बस लिख देना है 35 into 62 into 75. राइट? हमको इसको क्या करना है? We have to divide it by 100. Now look carefully. What you have to do? पहले जो कट जा रहा है ना उसको काट दो. ठीक है? जैसे कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 35 है या 75 है. That means it will be divided by 5. Let me divide by 5. So it will become what? 15. It will become 20. I have taken 5. Just write here 5. Okay. Don't do anything. Just keep it 5. Then again,
This 20, 15, this also will go by again by 5, right? 5 into 3, 15, 5 into 4, 20. So again, you have used 5, write down 5. Okay, now you see here how I can simplify again. This is 4, this is 62. Can I simplify by 2? This will become 31. This will become 2. So you have taken 2. Understood? Now what you have to do? You have to just look. What now just simplify. What it became? 51 into 27 into 35 into 31 into 3 by 2. What I'm trying to do, I'm trying to simplify the number to a what? To a smaller number, like 1-digit number or a prime number. Okay. Now, what you do, each number you have to divide by 2 and you see what is the remainder. Okay. When you divide 51 by 2, you will get a remainder 1 because 2 into 25 is equal to 50. You will get a remainder 1. Understanding now? When you're dividing 51 by 2, you will get 25. It will become 50. You will get a remainder 1. Again, when you divide 27 by 2, you will get what? 13 into 2, 26. You will get again remainder 1. When you divide 35 by 2, again you will get remainder 17 into 2, 34. You will get remainder 1. Any number you divide by 2, either you will get remainder 0, either it will be divided by 2 or it will be remainder of 1. Okay, odd and even number. Again, 2, 31. It will become 15 to 30. You will get remainder 1. 3, 2. It's odd number, so you will get remainder again 1. Now just multiply. 1 into 1 into 1 into 1, it will get 1. Now, the question is, when you are dividing this number or the given number with 100, what is the remainder? It was asked. By simplifying, when you reach the second step, what you got? When you divide this number by 2, you got a remainder 1. Okay, I have simplified the number. But this was not asked. What is asked? What is the remainder of this given number when you multiply this 5 number by 100? So whatever I have kept here, all this thing you have to multiply with 1. Okay, this is the trick. So 1 into 5 into 5 into 2. How much it is? 5 into 5, 25 into 2, 50. So 50 will be the remainder, right? Just for your sake of what you call conviction, I will show you this number. Just I will multiply 51 into 27, 51 into 27 into what is the number? 51 and 27 into 35 into 62 into 35 into 62 into 75. You see the number? What number you are getting? Equals to, I'm just using the what do you call this? Yeah, I'm using the calculator. You see the number? Control Shift S. Okay, see the number 2241 22410670. As I told you, when you divide this number by 100, I told you the last 2 digit will be the remainder. 50 is the last 2 digit. So this is the remainder. Are you understanding? This is what I told you in the beginning. Okay, so any number you divide by 100, you will get a remainder, the last 2 digit. Okay, now you got through the formula. Okay, now suppose this question is asked differently. See, we should understand fully. Let us say this question is asked like this: 51 into 27 into 35. Only 3 numbers are given, and you are asked to find the remainder when divided by 100. So what to do? Same thing you have to use it. First you have to just divide by 5. It will become what? 5 into 7, 35. It become 20. Understanding or not? Okay. Now you see whether anything you can divide. No. So just write down here 5. Now what it becomes, you see, 51 into 27 into 7 by 20. Now you see, divide 21 with 51. How much will you get? 21, I mean, so 20, it will become 20 into 2, 40. You will get a remainder 11. So this is 11. 27 by 20, what is the remainder? 7. Because 20 into 1, 20, you will get remainder 7. Here also you will get remainder 7. Okay, by 20. Now again you simplify. How much it will become?
Try to see. 7 into 7, 49 into 11 by 20. So 49 into 11 means how much? 49 into 11 means 539, right? Now 539 you divided by 20. How much you will get? So you will get 19, right? So here you got 19 the remainder. Okay, see this you have to follow. Now this is not the remainder. Remainder asked when divided by 100. Now when you divide by this number by 20, you got a remainder 19. So what you have to do? You have to multiply 19 with 5. So you will get 19 into 5 is equal to 95. That means when you divide this entire number by 100, you will get a remainder of 95. Can you check it? We'll just check it. 51 into 27 into 35. 51 into 27 into 35 equals to, just see, yeah, equals to, see the number 48195. What I told you, any number when divided by 100 you will get a remainder last two digit. What is the last two digit? यहाँ पे क्या है? 95 है ना? This is what we got the remainder 95. Are you understanding? So any question like that you have to solve only. Okay, it may be divided by 100 or any numbers. What you have to do? You have to just simplify it to some lesser digit. Okay, then whatever you are dividing numerator denominator, you have to just write down there. Then you have to multiply the whole thing, right? So I hope you understood this. We'll go to the next question. Do it. You just apply any number, you will get it randomly. Try it. कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे रैंडम नंबर लेना है अपने मर्जी के हिसाब से। ओके, जैसे लेना क्या मैंने लिया यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे 39 लिया, मान लो मैंने 49 लिया, कुछ भी 24 लिया, ऐसा करके 17 लिया, इसके बाद यहाँ पे मैंने 49 डाल लिया, अपने मन से जो भी है। मतलब मेथड वही है, आपको क्या करना है, सेम चीज कॉमन देखना है कि कैसे डिवाइड हो रहा है। जिसके मान लो 49 या 49 है तो क्या करोगे, 7, यहाँ पे 7 जाएगा, राइट। इसके बाद कुछ नहीं जाएगा तो यहाँ पे 7 रखना, फिर ये 7 को इस चीज में डिवाइड करना। ओके, तो देखो यहाँ पे 7 भी 7 कट जाएगा। देखो मतलब मजे की बात है कि ये 7 7 भी कट गया, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब देखो 49 49 कट ही गया, इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो गया ना, इसका इसका मतलब यही रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब मेरा मतलब कहने का है कि यहाँ पे तो कट जा रहा है, रैंडमली में से लिखा। आपको कुछ भी नंबर ऐसा मिले ना, बस जो सिंप्लीफाई करते रहना, यहाँ पे लिखते रहना कि किस नंबर से काट रहे हो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। उसके बाद जो यहाँ बच जाएगा ना, जो भी प्राइम नंबर बच जाएगा उसके हिसाब से फिर रिमाइंडर निकालते रहना। फिर जहां पे जो रिमाइंडर तुम्हारा आ गया उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना। ये है फॉर्मूला। अभी हम जब दूसरा कुछ क्वेश्चन हमको मिलेगा ना पीओक्यू में, इसको फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, आई विल रिमाइंड यू। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, मतलब एक सिटी है, ओके, वहां पे बोला है कि अडल्ट पॉपुलेशन है, 40% मेन एंड 30% वुमेन आर मैरिड। अच्छा, उस सिटी का जितने भी पॉपुलेशन है, सो 40% मेन वो मैरिड है, बढ़िया है। 30% जो वुमेन है वो भी मैरिड है। ये बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमन and no woman marries more than one man and there are no widows and no widowers। अभी समझो, सिटी में जो भी पॉपुलेशन है ना, इसका मतलब क्या है कि मेल है और क्या है, फीमेल है। ओके, इस मेल में कुछ लोग क्या है, मैरिड है, और कुछ है अनमैरिड है। इस फीमेल में कुछ लोग मैरिड है और कुछ अनमैरिड है। लेकिन ऐसा कोई मतलब देयर आर नो पर्सन लाइक विडो या फिर विडोर्स नहीं है। समझ रहे हो ना? या तो वो मैरिड है या तो अनमैरिड है। तो ये अडल्ट पॉपुलेशन टोटल सिटी का है। उसमें से उसने बोल दिया कि
40% जो मेन है वो मैरिड है, 30% वुमेन जो मैरिड है। आपको बताना है कि जो टोटल लोग, मतलब जो लोग मैरिज कर चुके हैं, व्हाट विल द टोटल इन कंपैरिजन ऑफ टोटल सिटी पॉपुलेशन, व्हाट इज द परसेंटेज। देखो ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, समझने के लिए कोशिश कीजिए। मान लो मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूं ताकि ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई सिटी में 1000 पॉपुलेशन से, ओके, ये सब अडल्ट पॉपुलेशन है, अडल्ट पॉपुलेशन है। इसका मतलब क्या है, इसमें मेल होंगे, फीमेल होंगे। इस मेल में कुछ मैरिड मेल होंगे और कुछ मैरिड अनमैरिड मेल होंगे। यहाँ पे देयर विल बी मैरिड वुमेन होंगे या मैरिड फीमेल होंगे या फिर अनमैरिड फीमेल होंगे, इस टाइप का होंगे ना। कोई विडो नहीं है, मतलब कोई मेल विडो नहीं है कि कोई फीमेल विडो नहीं है, सब इस टाइप का है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस 1000 पॉपुलेशन से, जो भी 1000 टोटल पॉपुलेशन है सिटी का, मान लो मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल लेट सिटी पॉपुलेशन 1000 है। आउट ऑफ द 1000 जो मैरिड मेल है उनकी परसेंटेज 40% दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान लो उस सिटी में, मान लो फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ मेल आर मैरिड, ओके, तो बाकी जो बच गए क्या है, अनमैरिड है। इसका मतलब मैरिड मेल, मान लो टोटल टोटल जो है वाई अनमैरिड मेल है। इसका मतलब एक्स मैरिड बाई एक्स मैरिड प्लस वाई अनमैरिड, इसको आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 40 मिलेगा। इसका मतलब यही है। सिमिलरली मान लो वहां पे पी नंबर ऑफ फीमेल जो कि मैरिड है, ओके, और क्यू नंबर ऑफ फीमेल जो अनमैरिड है, तो उनका परसेंटेज क्या है, पी फीमेल मैरिड बाई पी फीमेल मैरिड प्लस क्यू फीमेल अनमैरिड। इसमें आप 100 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 30%। क्वेश्चन में ये दिया गया है, ओके। अभी आपको क्या बताना है, किस आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि कितने मैरिड मेल है और कितने मैरिड फीमेल है, टोटल कितने सिटी की पॉपुलेशन है, उसका परसेंटेज आपको निकालना है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब कैसे करना है उसको देखो। मान लो, ये मैंने समझा दिया आपको क्या करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको क्या बोला है, आपको नहीं पता ना सिटी का क्या पॉपुलेशन कैसा, कुछ भी नहीं पता, आपको क्या करना है, लेट। मान लो उस सिटी में देर आर 100 मेल, देर आर 100 मेल, टोटल 100 मेल है। इसका मतलब 100 मैरिड मेल भी है और अनमैरिड मेल भी हो सकते हैं, यही है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 40% जो है मैरिड है। इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ द 100 देयर विल बी 40 मेल दोज हु आर मैरिड। ये समझ में आ रहा है। मैंने मैंने अजम्पशन लिया है, मान लो सिटी में 100 टोटल मेल हैं, क्वेश्चन में दिया कि 40% मेल मैरिड है। इसका मतलब आउट ऑफ द 100 40 मेल विल बी मैरिड। इसका मतलब क्या है, 60 मेल, 60 मेल विल बी अनमैरिड। इतना समझ में आ गया। आपको पता है मैरिज कैसे होता है, एक मेल आएगा एक फीमेल आएगा तब जाके मैरिज होता है ना, इसको हम मैरिज कहते हैं। क्वेश्चन में दिया है कोई भी मेल एक फीमेल से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है, या फिर कोई भी फीमेल एक मेल से ज्यादा शादी नहीं कर सकती है, ओके। ये क्वेश्चन में दिया है ना, दिस इज द ट्रिक पार्ट। ये assumption है, इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमन, ओके, मतलब एक मेल एक फीमेल, एक फीमेल एक मेल, ऐसे ही होता है ना। अब मैंने assumption लिया कि मान लो सिटी में 100 मेल है, उसमें से 40% दिया है मैरिड है, इसका मतलब 40 मेल मैरिड है, इसका मतलब 60 मेल अनमैरिड है। अगर 40 मेल मैरिड है, इसका मतलब उस सिटी में 40 फीमेल भी होना चाहिए ना, तब जाके मैरिज हो सकता है। तो मतलब उस सिटी में 40 फीमेल क्या है, अनमैरिड, सॉरी मैरिड है। इतना समझ में आ गया ना। 40 मेल मैरिड है, इसका मतलब 40 फीमेल भी होना चाहिए, ओके। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि उस सिटी में 30% फीमेल मैरिड है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को नहीं पता है। इस यहाँ पे मैंने assumption लिया कि 100 मेल है, लेकिन मेरे को नहीं पता है कि कितने फीमेल है, तो मैं से कैसे निकालूंगा। मेरे को दिया कि 30% फीमेल क्या है, मैरिड है। इसका मतलब दिस विल बी व्हाट, जितने फीमेल मैरिड है, कितने फीमेल मैरिड है, 40 फीमेल मैरिड है बाई टोटल फीमेल इंटू 100, ये 30 है ना। तो इसका मतलब क्या है, 40 फीमेल जो मैरिड है बाय टोटल फीमेल इंटू 100 = 30, ये दिया गया है मेरे को। तो कैन आई नाउ फाइंड व्हाट इज द टोटल फीमेल पॉपुलेशन। यस, तो द टोटल फीमेल पॉपुलेशन विल बी हाउ मच,
40 इंटू 100/30। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? 400/3। मैंने देखो ऐसा नंबर चूज किया है कि अभी कट नहीं रहा है, लेकिन आप अगर 300 लेते ना ये कट जाता। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आप 300 बंद 100 लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस सिटी में, वही सिटी में टोटल मेरे को 100 मेल मिल गए, और मेरे को 400/3 क्या मिल गया? मेरे को फीमेल मिल गए। इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन मेरे को पता लग गया सिटी सिटी क्या। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 100 + 400/3, इतना टोटल हो गया। और मेरे को क्या पूछा है? परसेंटेज मैरिड अडल्ट। परसेंटेज मैरिड अडल्ट क्या हो जाएगा ये बताओ? थोड़ा सा जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेता हूं। ओके, तो टोटल पॉपुलेशन मेरे को मिल गया सिटी का कितना? टोटल पॉपुलेशन मेरे को मिल गया 100 + 400/3। लेकिन मेरे को परसेंटेज अडल्ट मैरिड पॉपुलेशन निकालना है। मैरिड पॉपुलेशन निकालना, इसका मतलब क्या है? टोटल कितने मैरिड मेल फीमेल है डिवाइडेड बाय टोटल सिटी पॉपुलेशन। अभी मैं देख के यहाँ पे आया, मेरे को क्या मिला? आउट ऑफ द 100 मेल 40 मेल आर मैरिड। और कितना फीमेल मैरिड है? कितना फीमेल मैरिड है बताओ? वही 40 फीमेल ही मैरिड है। 40 मेल मैरिड है मतलब 40 फीमेल को तो मैरिज करेंगे। इसका मतलब टोटल 40 मेल मैरिड है, 40 फीमेल मैरिड है। इसका मतलब 40 + 40 इतना टोटल लोग मैरिज कर चुके हैं। बाई टोटल पॉपुलेशन कितना है? 100 + 400/3 इंटू 100, यही तो परसेंटेज है। इसका मतलब क्या होगा? 80। इसको सिंप्लीफाई करो। 100 + 400/3 कितना हो जाएगा? 3/300 + 400। इसका मतलब 700/3। तो यहाँ लिखो 700/3 इंटू 100। समझ में आ गया? बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। 80 × 3/700 इंटू 100 काट दो, तो होगा 7। इसका मतलब क्या है? 80 × 3 कितना हो जाएगा? 240/7। 240/7 को डिवाइड करो साथ में, कितना निकलेगा? 7×3 = 21, 7×28 2। इसका मतलब क्या हो गया? 34 2/7 परसेंटेज। इतना निकलेगा ना? देखो आंसर में क्या दिया है, क्या आ गया? 34, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया ना। 34 2/7 परसेंटेज मतलब टोटल अडल्ट पॉपुलेशन जो है मैरिड है। समझ में आ गया ना? इजी सा है, लेकिन क्या है कि ना लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में नहीं आता कि क्या बोला क्या है। तो यहाँ पे ट्रिक पॉइंट है कि मैंने कुछ अननोन वैल्यू लिया, कि मान लो उस सिटी में समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। मान लो उस सिटी में 100 क्या है? मेल है। मेरे को दिया है क्वेश्चन में 40% मेल जो है मैरिड है। इसका मतलब 40 मेल मैरिड है। 40 मेल मैरिड है मतलब 40 फीमेल से तो मैरिज करेंगे, तो इसका मतलब मेरे को मिल गया 40 फीमेल उस सिटी में है जो मैरिज कर चुके हैं। यहाँ पे और डेटा मिल गया 60 मेल जो है अनमैरिड है। अभी और एक डेटा क्या दिया था कि जो फीमेल मैरिड परसेंटेज है 30%। तो मैं क्या करूंगा? मेरे को 30% दिया गया था ना, बस इसको यूज करूंगा। मतलब जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन होगा उसको मैं यहां से निकाल लूंगा। निकाल लिया था ये, आपको देखे ना, यहाँ निकाल लिया था। कैसे निकाल लिया था? 40 टोटल फीमेल मैरिड है। टोटल फीमेल मेरे को नहीं पता सिटी में कितना है, इंटू 100/30। तो टोटल फीमेल पॉपुलेशन मेरे को मिल गया 400/3। अब सिटी में 100 मेल मिला था, 400/3 फीमेल मिला था, तो मेरे को टोटल पॉपुलेशन मिल गया। और मेरे को पता है 40 मेल मैरिड है, 40 फीमेल मैरिड है, इसका मतलब 80 लोग मैरिज कर चुके हैं, तो उनका बस परसेंटेज निकालना है, यही करना था। समझ में आ गया? ओके, चलो काफी टाइम लेके समझा रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ओके, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर when divided by 3 4 5 6 leaves remainder 2 in each case? इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना जहां पे पूछा है कि लिस्ट, इसका मतलब आंख मुझ के आपको एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं करना है। इसका मतलब वो पूछ रहा है देयर आर 4 नंबर्स, among दिस 4 नंबर्स व्हिच इज द लीस्ट, मतलब सबसे छोटा
जो कि 4 डिजिट का नंबर होगा, ये सब 4 डिजिट वाला नंबर है ना, सबसे छोटा कौन सा एक नंबर है जिसको व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय 3, 4, 5, 6, आपको हर केस में रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसका मतलब कुछ नहीं करना है आपको, बस एलसीएम निकाल देना है। किसका एलसीएम निकालना है? 3, 4, 5, 6। व्हाट विल एलसीएम? आपको पता है, बस निकाल देना है। ये 2 से ये जाएगा, 2 के 2, एलसीएम कितना हो गया? 3 × 2 × 2 × 5 कितना हो जाएगा? 6, 2, 12, 5, 60। इसका मतलब 60। तो मतलब जो नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6 से डिवाइड हो सकता है, वो नंबर 60 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं? चेक करके देखो, ये एलसीएम का फॉर्मूला होता है। एलसीएम का मतलब है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मान लो कोई 4 डिजिट नंबर 3, 4, 5, 6 से डिवाइड होता है साइमल्टेनियसली, एक साथ में सब डिवाइड करेंगे, सबको वो डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब वो 60 से डिवाइड हो जाएगा। अभी आप मेरे को बताओ 60 से डिवाइड होने वाला सबसे लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? आप 60 से 10 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 600। 60 में आप मान लो 15 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 900। अभी भी 4 डिजिट नहीं हुआ है। 60 में आप 16 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 960। अभी भी 4 डिजिट नहीं हुआ है। 60 में आप 17 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, देखो 1020 हो गया। इसका मतलब क्या है? 60 से जो सबसे लीस्ट 4 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है वो क्या है? 1020 है। लेकिन मेरे को क्या पूछा है? मेरे को ऐसा नंबर ढूंढना है जब मैं डिवाइड करूंगा 60 से उसका रिमाइंडर 2 मिलेगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? इससे 2 ऐड कर दूंगा, 1022 है कि नहीं? इसका मतलब 1022 को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 17 लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 1020, तो आपको रिमाइंडर 2 ही मिलेगा ना। तो बस रिमाइंडर को 2 यहाँ से ऐड करना होता है। आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 4 डिजिट वाला है आपको ढूंढना है। उससे फिर क्या करना है? यू हैव टू ऐड 2। अगर रिमाइंडर 3 बोलता तो 1023 हो जाता। ठीक है, ओके। या फिर आप क्या कर देना, 4 नंबर दिया गया है, आप एलसीएम निकाल लिए 60, हर किसी को आप डिवाइड कर दो चेक करने के लिए 60 में। ये 60 में कितना हो जाएगा बताओ? 15 तक जाएगा ना, ये 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 निकलेगा नहीं। नेक्स्ट देखो 1022, यहाँ पे निकल जाएगा 2। ऐसे भी आंसर मिल सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, मैंने बताया। मान लो क्वेश्चन में दूसरा कुछ घुमा के दे देगा, ओके, यहाँ पे वाइड वाइड वेराइटी का नंबर दे देगा, तो आपको क्या करना है? एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मतलब जैसे कि आपको 3, 4, 5, 6 का एलसीएम मिल गया, नाउ यू हैव टू फाइंड व्हिच इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 60। यू गॉट इट, दिस इज 1020। अभी पूछा है रिमाइंडर हर केस में 2 होगा, इसका मतलब क्या है? आपको 2 ऐड कर देना है। ये बन गया 1022। ओके, अंडरस्टूड? whenever it will be written least, that means LCM, greatest means HCF, highest common factor, least common multiple। समझ गए? ओके, ये देखो, ये मतलब ये 10th लेवल के मैथमेटिक्स से देखो पूछा है। द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 डॉट 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 इज इक्विवेलेंट टू कितना है? मतलब क्या है? आपको 1.272727 ऐसा है ना, इसको आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। देखो, इसका 2 मेथड है, एक तो शॉर्टकट मेथड है और एक क्या है कि डेरिवेटिव मेथड है, आपको डिराइव करना है। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। देखो, ये क्या है? कैन आई राइट, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 272727। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1.27, उसके ऊपर के बार देते हैं। इसका मतलब क्या है? जिसके ऊपर में टोपी लगाएंगे ना बार, इसका मतलब वही डिजिट बार बार रिपीट होगा, 27 रिपीट होगा। तो आपको क्या करना है? मान लो उसको मैंने x लिया, x इज इक्वल टू 1.27 बार। अभी आपको क्या करना है ना, आपको डेसिमल के बाद जितना नंबर बा जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आपको एक में 2 शून्य लगा के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। करो, तो यहाँ पे 100x मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 127.27 बार। समझ में आ गया ना? यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 100 मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे 100 मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या है? 1.2727
27 ऐसा करके है ना। यहाँ पे मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल का जो राइट में 2 डिजिट है वो लेफ्ट को आ जाएगा, तो 127 बन गया। इसके बाद फिर यहाँ डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 27 इसका मतलब 227 बार हो जाएगा। अभी क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 127.27 बार माइनस 1.27। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बार बार अभी कट गया है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 127 माइनस 1 इज इक्वल टू 126। समझ में आएगा ना, 127.27 इसमें मैंने 1.27 को माइनस किया, मतलब एक 27 बार मतलब 27 ये जो 27 को मैंने हटा दिया बिल्कुल, तो मेरा कितना बच गया, 126 बच गया। इसका मतलब x कितना हो जाएगा, 126/99। अब ये 3 से इसको काट दो, 33, फिर से 3 में जाएगा, 14/11, 14/11, 14/11 आंसर है, 14/11। या आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली शॉर्टकट बता रहा हूं, जो कोई भी नंबर दिया है ना ऐसे रिकरिंग, इसको ऐसे लिखो, दिस इज इक्वल टू, जो नंबर है ना सब कुछ भूल जाओ, ये डेसिमल भूल जाओ, ये बार भूल जाओ, क्या जो नंबर है उसको लिख देना है, क्या लिख देना है, 127। इसे सब्ट्रैक्ट करना, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, जो यहाँ पे लिखा है, जो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या मतलब एक के ऊपर बार नहीं है तो एक सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे 29 लिखना है। कितने नहीं हो रहे हैं, मतलब जितना डिजिट आपका रिपीट नहीं होता है, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, 1.27 बार है ना, तो सब कुछ भूल जाना है, 127 लिख देना है यहाँ पे, माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करना है। इसके बाद क्या करना है, 99 कर देना है, ठीक है। जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उसको नीचे लिख देना है, तो कितना हो जाएगा अभी ये, 126/99। समझ में आ गया, ओके। और थोड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने ऐसे बताया, 0.0069 बार, इसका मतलब क्या है, 0.00696969 ए रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला के हिसाब से, सब लिख दो। और पूरा लिखने से क्या हो जाएगा, 0.0069 माइनस क्या करना है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, इतना रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको लिखना है, क्या मतलब 0 लिखना है। भाई कितना रिपीट हो रहा है डिजिट, दो दो डिजिट रिपीट हो रहा है, 6 और 9 हो रहा है ना, तो 9 जितना है। कितना नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 मतलब डेसिमल के बाद जितना नहीं हो रहा है उतना 0 लिखना है। कितना नहीं हो रहा है, 1 2, तो 2 0 लिखना है, जितना हो रहा है उतना 9 लिखना है, जितना नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद उतना 0 लिखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 69/9900। ओके, और एक बताता हूँ, मान लो आपको ऐसा दिया है, फॉर एग्जाम्पल 2.7646464 ऐसा करके दिया है, क्या करोगे, कैसे लिखोगे, 2.764 बार, फिर क्या करना है आपको, सब कुछ भूल जाना है, नंबर लिख देना है 2764। समझ में आ गया, माइनस कर देना है, क्या रिपीट नहीं हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको लिख देना है, सब हटा देना है, मतलब ये ऐसे लिख देना है, ये डेसिमल हटा देना, बार हटा देना, सब कुछ लिख देना, पहले नंबर लिख देना, उसके बाद जितना रिपीट नहीं हो रहा है उस सबको नंबर में कन्वर्ट कर देना। कितना नहीं हो रहा है, 27 नहीं हो रहा है, तो 27 लिख देना है। नीचे क्या करना है, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना 9 लिखना है, यहाँ पे 64 रिपीट हो रहा है तो 2 9 लिखना है। डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको ही 0 डालना है, यहाँ पे सिर्फ 7 है, तो यू हैव टू पुट 1 0, नॉट दैट कि यहाँ पे 27 रिपीट नहीं हो रहा है तो मेरे को 2 0 नहीं देना है, नहीं, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उतना 0, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना 9 लिखना है। ओके, सो नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट विल बी रिप्लेस्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ 9, नंबर ऑफ नॉन रिपीटेड डिजिट आफ्टर डेसिमल विल बी रिप्लेस्ड बाय 0। जस्ट यू हैव टू फाइंड इट। इसका आपको सिंपलीफाई करके क्या लिखना है, 2737/990, यही होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मान लो दूसरा एक बताता हूं आपको, 0.1234, मतलब क्या है इसका मतलब, 1 2 रिपीट नहीं हो रहा लेकिन 3 4 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है, कैसे करोगे भाई, सिंपल है, मैंने क्या बोला, सब भूल जाओगे तो क्या लिख दोगे,
0 1 2 3 4, उसे कितना माइनस करोगे? जितना रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 0 1 2, 0 1 2 कहने से मतलब 12 है। तो मैं बस लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि यहाँ पे मान लो कोई 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी नंबर होगा, यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ओके, डेसिमल के बाद कितना नंबर, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? 3 एंड 4 हो रहा है, इसका मतलब 9 9। कितना नहीं हो रहा है? 2 हो रहा है, 1 2, सो 0 0 लिख देना है। ओके, इसको बस आप सिंप्लीफाई कर देना है। तो हाउ मच यू विल गेट, जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई, इसको शॉर्टकट करके 1 2 34 से 12 जाएगा, मतलब बाई 9900। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ, अभी बताया था ना, नाउ जस्ट आई टोल्ड यू, व्हेनेवर द क्वेश्चन इज लीस्ट इट इज एलसीएम, व्हेनेवर द क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट इसका मतलब क्या है? एचसीएफ। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3 1/2 मीटर एंड 8 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको क्या करना है? 3 1/2 एंड 8 3/4 का आपको सिंपल पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। दैट मीन्स यू शुड नो हाउ टू गेट द एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा? 3 × 2 + 1/2, इसका मतलब 7/2। इसका क्या मीनिंग होगा? 4 × 8 + 3/4, इसका मतलब क्या है? 35/4 है। समझ में आ गया? इसका मतलब मेरे को एचसीएफ निकाला, एचसीएफ ऑफ 7/2 एंड 35/4। अभी बता रहा हूं, whenever you have to find HCF of fraction, this means HCF of जो भी न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में क्या क्या है? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 35 है। HCF ऑफ 7 एंड 35 डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर पे क्या है? 2 1 4। बस आपको यही करना है। आप HCF निकालो 7 35 का, 7 इंटू ये हो गया 5, मतलब क्या होगा? सबसे हाईएस्ट क्या होगा? 7 ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स व्हिच इज द हाईएस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 7 एंड 35, दैट मीन्स 7। ऊपर आ गया 7। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स व्हाट? 2 4 का एलसीएम निकालना है, 4 ही है, दैट मीन्स 4 इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 1 4। उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिस्ट क्या है? 4 है। तो 7/4 हो गया। इसको आप एक्सप्रेस कर दो फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा? 7 4 मतलब 1 3/4, ये हो गया ना? तो आंसर देखो, हो गया। 1/3/4। ओके, ये हो गया आपका आंसर। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 1/2 एंड 8 3/4। समझ में आपको आ गया एचसीएफ कैसे निकालना है? सिमिलरली अगर एलसीएम निकालना है कोई भी फ्रैक्शन का, मान लो a/b c/d, इसका मतलब क्या है? एलसीएम ऑफ a एंड c बाई एचसीएफ ऑफ b एंड d। बस याद रखना है, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर एलसीएम रहेगा, नीचे एचसीएफ रहेगा। एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर एचसीएफ रहेगा न्यूमरेटर का, नीचे एलसीएम रहेगा डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम रहेगा। इतना ही याद रखना है। ओके, so today we have covered 5 very good question. Okay, these are very very fundamental question. See, my aim is what? My aim is to make you understand, आपको कंसेप्ट समझाना है, दैट इज माय एम। एक क्वेश्चन को भले ही मतलब लेट मी सी दिस क्वेश्चन आई कैन सॉल्व इन 2 minutes also, but that is not my aim to solve it. I want you to go through the process I am going. Okay, and my aim is that you should not remember any formula, just you have to remember the basic, how to derive. Okay, अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि कोई भी क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के उसको सिंप्लीफाई कर करके मेथोडोलॉजिकली कैसे सॉल्व करना आता है ना, तो आपको कभी शीशा डर नहीं लगेगा। क्योंकि क्वेश्चन हर साल घुमा फिरा के ना पूछेगा, आपको एवरेज से ऐसा क्वेश्चन निकाल के दे देगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि एवरेज ही पूछा है। बट इफ यू आर हैविंग द conceptual understanding, then only you will be able to do. In that case, no need to mug up any formula. बोलते ना कि फॉर्मूला ले लो, तो फॉर्मूला का क्या करोगे जब फॉर्मूला का आपको नहीं पता है कैसे अप्लाई करोगे? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, आई एम ट्राइंग टू टीच how to apply the basic mathematics of 10th
and 12th level. चलो 12th छोड़ी दो, 10th level. Okay, just you have to be patient, you have to listen to me and you will get through. So I am ending today's class. I hope you understood something. I'll be eagerly waiting for your comments in the comment section. Do comment if you're not understanding anything. I will make it sure that you got the points, we got the concept. Okay, so thank you for having patiently listening to me. Thank you. See you again next class.